हाइड्रोजन एंड CO2, यही दो आपके साथ ज्यादा आएंगे क्वेश्चंस. All questions are based on that. Okay. So our next property, our next characteristic. तो हमने एक characteristic देखा था. How do you get to know that a chemical reaction is taking place? One of the characteristic that we saw was evolution of gas. Okay. Our next characteristic will be here. देखो इस stage से आपको कोई reactions नहीं पूछते हैं. आपको एक ना case based questions बनाएगा कि this was observed, did a reaction take place, and then another thing that I wanted to say, science as a whole will come for 80 marks. In that 80 marks, we have got chemistry, we have got physics, we have got bio. करीबन 22-26 होता है, 22-26 के आसपास. Bio has more. Okay. Now, don't think that from every part everyone has the freedom to make a question. Are you getting it? 22 marks में आपको chemistry पूछना है, and you have got 4 chapters in chemistry जिसमें से आपको पूछेगा. So केस बेस्ड क्वेश्चंस क्यों किया है लोगों ने? क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन को एक ही केस में घुसा सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? एज अ क्वेश्चन सेटर, मेरे लिए एक तीर से 3 शिकार हो जाता है. आइदर आई कैन आस्क यू अ वेरी डम्बो क्वेश्चन लाइक डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये तो तुम रट के लिख दोगे, इससे आपका टेस्टिंग नहीं हो रहा है. रादर आई गिव यू अ क्वेश्चन इन विच देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व्ड, लिटिल बिट ऑफ बैलेंसिंग इन्वॉल्व्ड, पार्ट बाय पार्ट करके छोड़ देगा. इसलिए डेप्थ में जानना जरूरी है. ठीक है. सो आवर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वाज formation of precipitate. Now the sad part is you are learning all these things without going to a lab. Formation of precipitate. So let's understand पहले precipitate क्या होता है. ठीक है. We will understand what is a precipitate. A precipitate is something that is actually, and what happens is that it settles separately in a solution. Precipitate is an insoluble component which will settle down on the test tube. So whenever you have suppose some clear solutions, which we are performing some experiment, and if you get a precipitate, that means a chemical reaction has taken place. Precipitate समझ रहे? A precipitate is something which is not soluble and completely separates out and settles below in the solution. मतलब अगर it's like a residue. जैसे आपका ये test tube है, and in this test tube, say suppose you have some liquid component A. जैसे हमने इसमें A component है, ठीक है? अब आपने इसमें एक B component डाला, and you have poured B. After pouring A and B, then what you see is that नीचे you will find that some sort of a completely separated substance नीचे आ गया है. White color हो सकता है, colored हो सकता है. This substance is known as your precipitate. Is it clear? So what is a precipitate? They will tell you that something came which separated out completely, and it will settle below. जितना भी आप shake कीजिए, it will not be soluble. It will not be soluble. ये नीचे जाके settle हो जाएगा. ठीक है? तो precipitate. So and the reaction for this, there are some examples. इसको अभी जान के रखिए, बाद में हम लोग जब इसमें देखते हैं. Like हाँ, एक reaction ऐसा है. This reaction will actually take what you call care of 2 characteristics. Suppose you have something called lead nitrate. Okay, lead nitrate, and lead nitrate, if you make it react with potassium iodide, ठीक है. लेड के सॉल्ट्स हमेशा येलो कलर के होते हैं. लेड के सॉल्ट्स हमेशा येलो कलर. सो इन हायर क्लासेस व्हेन यू गो टू grade 12, when somebody gives you a yellow salt and tells you that you identify what cation is present and what anion is present, येलो देखने से you should immediately perform a test for lead. chances are there कि lead के chances ज्यादा है. तो it's ये रिएक्शन अभी आप लिख लीजिए. ये रिएक्शन will be actually a double displacement reaction जब हम पढ़ेंगे. It will also be an example for color. It will also be an example for precipitate. तो यहाँ में क्या हो जाएगा? We will get एक दूसरे को अदला बदली करेगा. ठीक है? ये इसको भगाएगा, वो उसको भगाएगा. So you will form lead iodide. Lead iodide. और ये lead iodide जो है ना, यही precipitate करेगा. और इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये येलो कलर होता है. तो भाई साहब, this particular reaction can satisfy characteristic of a color, characteristics that is formation, change in color, as well as formation of precipitate. So lead will form iodide and potassium will form potassium nitrate. Sorry, ये लिख दिया, potassium nitrate. Potassium nitrate.
Which one? लेड आयोडाइड इज प्रेसिपिटेट, पोटेशियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट, एक्वस सॉल्ट है वो मिल जाएगा। तो देखते हैं ना, आओ लिखने की कोशिश करते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट इज PbNO3 ट्वाइस, रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, ये दोनों ही एक्वस है, एक्वस एक्वस, ठीक है। अब ये बनेगा लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, PbI2 फॉर्म हो जाएगा, ये बनेगा KNO3। तो यहाँ पे 2 डालिए आई थिंक, और इसको भी 2 कीजिए, बस सब सेटिस्फाई हो गया। सो दिस इज द प्रेसिपिटेट PPT, इसमें और एक्वस नहीं लिखेंगे, ये पार्ट आपको कोई अभी पूछता नहीं है। This part nobody is asking you. You should only know that as characteristic, we should know that what is the definition of a precipitate. If you want typically examples of CBSE, then you should know what is the definition of precipitate. Then you should know what is a precipitate, why is a precipitate characterized as a characteristic for a reaction to take place. And one example, well, lead nitrate reacts with potassium iodide to give you lead iodide and forms potassium nitrate. ठीक है? Sulfuric acid and barium chloride. So this sulfuric acid H2SO4, ऐसे लिखना शुरू कीजिए तब आपको हैबिट हो जाएगा। बैरियम क्लोराइड BaCl2, वेरी गुड, एक्वस। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, बैरियम सल्फेट फॉर्म करेगा BaSO4, नाउ दिस इज 2, एंड देन इस साइड में क्या हो जाएगा, BaSO4 NaCl आ जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए SO4, सो H2SO4, यहाँ पे अगर हम 2 करें, दिस इज बिकमिंग 4, सो नहीं, BaSO4 डायरेक्टली, इसमें 2 नहीं होगा, सॉरी, वही मैं बोल रहा हूँ, बैरियम सल्फेट इज, थैंक यू, BaSO4 बिकॉज SO4 is 2 minus and you get HCl, so 1 hydrogen 1 hydrogen 2 hydrogen, तो इधर पे 2 डाल दो तो ये आपका हो गया। ये जो है this is also a precipitate. So in this section if somebody says what are the things you should know, आपको precipitate का definition आना चाहिए, क्योंकि यही आपको 1 mark true or false reasoning में डाल सकता है। what is a precipitate, so precipitate क्या है ये आपको आना चाहिए, and it is also a characteristic, एक दो examples आने चाहिए आपको बस, that's all. Nobody will give you a direct question like this, define precipitate, you won't get. This will be a 1 mark question of some important question, ठीक है। हाँ, इसमें important जो था वो पहला वाला we have already discussed, evolution of gas. The next one will be temperature, उसके ऊपर हम discuss करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, any doubt here, ठीक है, okay. The next one, change in color. Change in color. If you are trying to perform an experiment with 2 reactants which have a characteristic color, and after performing the experiment, if you see that the color of the reactant has changed, one of the reactant has changed, that means chemical reaction has taken place. Change in color, जैसे यहाँ पे कुछ characteristic चीजें हम और देखेंगे, जैसे one of the reagent that we use a lot in lab is called potassium permanganate. Potassium permanganate. People who have individual houses and who have got sump, जिनका नीचे water tank रहता है, sump, and you have to clean that tank, तो देखना एक what do you call pinkish powder डालते रहते हैं ऐसे बड़े बड़े crystal, पर्पल कलर के, that is called potassium permanganate. Potassium permanganate इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, और इसका एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा पर्पल, ठीक है। इसको अगर हम सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं ना, एसिड बेसिकली इट्स अ बेसिक, ये बेसिक आइटम है, तो इसको आप एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड एंड बेस, या but is there a reflection falling on the board for you, beta? Oh, it's KMnO4, K, K for Kathleen, M for Mary, N for Nagpur, O for Ox, and 4, KMnO4.
अच्छा कि ये जो है ना ये बेसिक होता है, तो आप इसके साथ एसिड को रिएक्ट कर रहे हो, एसिड और बेस ये सब धीरे धीरे सुनते जाइए। नहीं वो सब किताबी चीज, एसिड और बेस इज देवता और राक्षस के बीच की लड़ाई है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, इस लड़ाई के बाद ना मैं देवता रहूंगा ना आप एसिड राक्षस रहेंगे, तो मेरा जो प्रॉपर्टी है वो मैं खो दूंगा। सो इसके साथ रिएक्ट करने से ये जो कलर है ना ये डिसअपियर होना है। दैट इज, आई थिंक स्पेलिंग इज रॉन्ग। मैंगनीज। पर्पल कलर, और ये सॉल्यूशन हमारा जो है कलरलेस हो जाएगा। Did you understand? Citric acid's chemical formula will be very big. वो नहीं पढ़ा। Citric acid, malic acid ये इतना आसान नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नहीं पढ़ते हैं इसमें, हम सिर्फ एसिडिक एसिड के ही फॉर्मूला पढ़ते हैं। अच्छा एक और रिएजेंट है, ये एक है, इसको बहुत चैप्टर्स में हम देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, रट लो इसको। एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट उस दिन बताया था लिस्ट में, किसी को याद है? K2Cr2O7। इसका जो सॉल्यूशन होता है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस इसमें बबलिंग करना शुरू कर दे तो ये अपना कलर ऑरेंज से ट्रांसफॉर्म करके हो जाता है ग्रीन। ये जस्ट 2 एग्जांपल्स। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा देखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करेंगे so it will change its characteristic color from orange and it will turn green. So what all did we learn today apart from evolution of gas in the last class? First we learned is formation of precipitate. What is a precipitate? A precipitate is a residue which settles at the bottom of the test tube when the reaction takes place, insoluble and it will not mix, it will settle down. Okay, na? So some of the examples that we saw was barium chloride reacting with sulfuric acid to give you barium sulfate. Barium sulfate is a white precipitate. बेरियम सल्फेट अगर मैंने व्हाइट नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। एंड अनदर रिएक्शन दैट वी सॉ, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड वाज मेड टू रिएक्ट विद lead nitrate, so it's a swap, double displacement. Formation of precipitate, how many examples do we need to know? ये दो जानने से more than enough. We don't need to Nobody will ask you give an example, ऐसे questions नहीं आते हैं। Can they give you a question to show a reaction you have to identify? Very rare they will show that there was a formation of a compound which settled below and that is as a metal. So what is the metal? आपको बेरियम आना, वो ऐसे आना चाहिए, आपको घुमा के पूछेगा। जैसे ये अभी बोल रहा था ना that a compound whose oxide and a solution is used to whitewash an element, so they are actually hitting for calcium. Do you know that or not? And the gas which was produced had the capacity to turn lime water milky. Identify the gas. ऐसे questions आएगा। तो आपको story पता होना चाहिए that a salt, a chloride salt of a metal was made to react with this. And barium क्या है, इस ग्रुप में है, ऐसे बोल देगा। ये आसान रहता है, इतना इसमें नहीं, अभी आया नहीं, आपको questions जहाँ से पूछेंगे वो जगह आएंगे अभी। ये clear हो गया? ठीक है। Cr कहाँ? क्रोमियम। क्रोमियम लिखो मत, हाँ। K2Cr2O7 is one compound that is called potassium dichromate. आइए ये नेक्स्ट वाला पार्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, एंड दिस इज फॉर योर हायर क्लासेस आल्सो, व्हिच इज कॉल्ड change in temperature. 1 2 3 we are done. Now we are at the fourth one. Fourth characteristic is change in temperature. इसको हम थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। change in temperature. If you conduct or if you are trying to do an experiment with chemicals and you find that the temperature of the chemicals have changed, temperature of the chemicals have changed. Temperature change का मतलब क्या है? या तो वो ठंडा हुआ होगा या तो वो गर्म हुआ होगा, ठीक है ना? So that is called a change in temperature. अच्छा, टेम्परेचर और चेंज ये सब के लिए आ जाओ, वैसे बेसिक देख लेते हैं।
फिजिक्स से शुरू करते हैं। हीट, हीट क्या है बेटा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छी बात है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये हीट कहाँ से आता है? ये हीट आता है ड्यू टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, आपने पढ़ा है। ऑल दिस materials are vibrating, all the particles of matter keep on vibrating। तो हर मैटर के पास, जैसे ये बोर्ड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, they have got a specific amount of kinetic energy associated with them। You can't make it zero। Theoretically you can make it zero, but actually you can't make it zero। वो जो एनर्जी किसी के पास रहता है, ये आप 11 में पढ़ोगे, इसे हम एंथैल्पी कहते हैं, बेसिक एनर्जी जिसके पास है। नाउ व्हेनेवर यू सप्लाई एनर्जी, आप जब बाहर से एनर्जी या हीट सप्लाई करते हो, तो क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। दिस पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली एंड दे गेन व्हाट इज नोन एज हीट। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फिर टेम्परेचर क्या है? यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स समझेंगे। टेम्परेचर होता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ये हाई लेवल बढ़ा रहा हूं तुम्हें, लेकिन सीखिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मतलब अगर हमारे पास 1 मिलियन पार्टिकल्स है, उन सब का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज टेम्परेचर। और अब बचपन की बात में आ जाते हैं। टेम्परेचर इज एक्चुअली अ मेजर, इट्स अ मेजर ऑफ हीट। अब हीट बोलने से आपको गरम 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 ये फीलिंग आता है, ऐसा नहीं। ये लेकिन बाद में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी की बातें नहीं है, ये अभी पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हीट का मतलब गरम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा है आइसक्रीम, ठीक है? दो वैरायटी है हमारे पास, I1 वैरायटी है और I2। I1 को हमने -26 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा है और इसको -22 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा है। तो कोई हमें पूछता है विच इज मोर हॉट? इन फिजिक्स वी नेवर कॉल कोल्ड नाम की कोई चीज है हॉट। किसके पास हीट ज्यादा है? इसके पास हीट ज्यादा है, ठीक है ना? इसका टेम्परेचर लोअर है। जिसका टेम्परेचर लोअर है उसका हीट कंटेंट लो है। सो टेल मी चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट हीट? हीट क्या है? हीट इज ऑल अबाउट द एनर्जी कंटेंट इन यू। How does it get increased? Whenever you supply energy, the kinetic energy of the particles which constitute you as a matter, it starts increasing and these particles starts vibrating. As a result, that is known as heat. Heat का मतलब ये नहीं कि गर्म, ये भी heat है, ये भी heat है। What is temperature? Temperature is a measure of the content of heat in a body. एक बॉडी के पास कितना हीट है। अगर हम यहाँ टेम्परेचर देखें तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? This temperature is more. So this one has more heat as compared to this. And what is temperature? Temperature is the average of kinetic energy. Is the measure of the average kinetic energy. ये आप 11 में पढ़ेंगे, पर जान के रखिए, ठीक है? समझ में आया? ओके, अब एक और चीज पे चलते हैं। Every experiment or everything that we do in this universe, in the terms of physics, we bring everything in two concepts. One is what you are doing or what is your area of interest or what you are trying to study, that we call as a system. Physics में ये समझना आसान है, केमिस्ट्री में ये कंफ्यूज कर देते हैं लोग। अभी आपको समझ में आ जाएगा। सिस्टम, मैंने एक रेफ्रिजरेटर बनाया, तो रेफ्रिजरेटर क्या बना मेरा? सिस्टम। आई एम इंटरेस्टेड इन माई रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है इस दुनिया में, वो बनेगा मेरा सराउंडिंग। यानी मेरे घर के रेफ्रिजरेटर के लिए अमेरिका इज ऑल्सो ए सराउंडिंग, ये बनेगा मेरा सराउंडिंग। क्लियर? और ये दोनों एक साथ होने से इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्स। ये फिजिक्स में बहुत आसान है समझना। यूनिवर्स, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ सराउंडिंग and there is a universe. Suppose I am talking about, ये है वो रूम जहां यथार्थ रात को एसी चला के सोता है, तो वो हमारा सिस्टम है। उस रूम के छोड़ के बाकी सब कुछ इज सराउंडिंग। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, हीट को हम डिनोट करते हैं विद द लेटर Q इन फिजिक्स, ठीक है? अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हो रहा है, देखो, अगर कोई, एवरीथिंग वी विल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम, बिकॉज वी एज इंजीनियर्स और एज साइंटिस्ट or as students or as research guy, our interest is only on the system. अगर कुछ ऐसा कांड हो रहा है कि सिस्टम जो है हीट बाहर छोड़ रही है, system is releasing heat to the surrounding. Have you understood? So in that case, what will happen? The surroundings temperature will go up and system का temperature जो है it will come down. सीधी सी बात, समझ में आ रहा है आपको? सिस्टम इज रिलीजिंग हीट टू द सराउंडिंग,
so surroundings temperature will go up and systems temperature will come down. समझ में आया? ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और बड़ा आसान है समझना, इसको आप ऐसे समझिए, हीट एग्जिट्स द सिस्टम, एग्जिट से आया एक्सो और एक्सो से आया एक्सोथर्मिक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इन विच सिस्टम रिलीजेस हीट टू द सराउंडिंग, as a result of it the temperature of the system comes down and the temperature of the surrounding goes up. How to remember it? The aid to memory is exothermic mean heat exits the system, heat ने system को छोड़ दिया, और हमारे लिए system ही important है। Are we understanding it? बड़े deep में पढ़ेंगे इस चीज को, ये physics के perspective से है। अब कुछ चीजें देखते हैं, मजेदार चीजें, आइए। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी व्हिच इज एट अ टेम्परेचर T1 and this is a body, and children participate in these discussions because then only you will learn science। ये ऐसे एक एग्जांपल पढ़ के कुछ नहीं होता है। एक बॉडी है टेम्परेचर T2 में, और मैंने बोल दिया कि T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, T1 का टेम्परेचर ज्यादा है। नाउ यू ट्राई टू थिंक, हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? T1 से T2। T1 से T2। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ये देखिए, आपकी मम्मी रोज सुबह चिल्लाती है आपके ऊपर कि आपका बॉर्नविटा का कप गर्म रहता है, तो आप फटाक से पी नहीं पाते हो, बस आ गया। तो मॉम क्या करती है, बॉर्नविटा के कप को एक वाटर बाथ में डाल देती है ना, वाटर बाथ T2 पे है, बॉर्नविटा T1 पे है। तो बॉर्नविटा क्या करता है, अपना हीट पानी को छोड़ता जाता है और बॉर्नविटा ठंडा होना शुरू हो जाता है, पानी गर्म होना शुरू होता है। एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन बाय डाइट, व्हेन यू टेक आउट ऑल दोस फ्रोजन मीट एंड फ्रोजन फिश, तो आप क्या करते हो, उसको पानी में डाल के रख दोगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे द पनीर और द फिश और द मीट इज ओपनिंग अप, एज वेल एज द वाटर हैज बिकम चिल्ड कोल्ड। वाटर की एक बड़ी खास चीज है, वाटर कैन एब्जॉर्ब अ लॉट अमाउंट ऑफ हीट। ये भी आगे पढ़ेंगे जब आप 11 में जाएंगे, एंड यू विल बी रीडिंग समथिंग अबाउट थर्मल द थर्मोडायनामिक्स पार्ट, दिस बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। सो हैव यू अंडरस्टूड टेम्परेचर? तो ऐसे चीज में इसको कुछ ऐसे समझते हैं, दो बिल्डिंग ले लेते हैं, और ये है बिल्डिंग T1। ये बिल्डिंग ऊंचा है क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा है, और ये बिल्डिंग कैसा है, T2। क्लियर हुआ? ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं, अब यहाँ पे बच्चा बिठाओगे तो बच्चा आएगा, स्वी करके आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ये दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है। 12 में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, अगर यहाँ वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ वोल्टेज कम है, चार्ज फ्लो करेगा अलोंग द वोल्टेज ग्रेडियंट। ऐसे तो होता है, प्लग पॉइंट में वोल्टेज 220 वोल्ट है, टीवी हमारा 0 पे है, जैसे ही स्विच ऑन किया प्लग से टीवी में आता है, टीवी से प्लग में नहीं जाता है। अच्छा, दूसरा देखो, जब आप इसको फिजिक्स में पढ़ते हो तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट, तो यहाँ mgh इज मोर, हियर mgh इज लेस, पानी सड़ाक करके ऊपर से नीचे आएगा। इज दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड? नाउ से सपोज हम कुछ उल्टा सोचते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है T1 और एक बॉडी है T2, ठीक है, और यहां हम कहते हैं, नाउ वी से T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट कहां से कहां जाएगा, T1 से T2 जाएगा। लेकिन यहां आ गया हमारे अंदर खुराफाती, और खुराफाती आते ही हम कहना शुरू करते हैं, नहीं सर, हम T2 से T1 में हीट भेजना चाहते हैं, दुनिया के खिलाफ जाना चाहते हैं। वी आर थिंकिंग नाउ व्हाट, कि T1 ज्यादा है ना, हम चाहते हैं बच्चा यहां से यहां जाए। मुश्किल है, नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। अगर कोई यहां से इस बच्चे को लात मारेगा तो वो जाएगा, पुश करेगा। ये तो होता तो है। दिस इज आवर फ्रेंड वेदांत। ये रात को खराटे लेके सोता है एसी चला के, कितने में, 22 डिग्री सेंटीग्रेड में, और आज हैदराबाद बाहर पे है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। Every night he is releasing heat. The whole night what is happening? He is releasing heat. है ना, उसका रूम ठंडा होते ही जा रहा है, रूम गर्म होने से तो रूम का हीट बाहर जा रहा है, तो बच्चा तो जा रहा है ऊपर। पर इसको करने के लिए वेदांत के पिताश्री जो हैं वो खर्चा कर रहे हैं अपने जेब से, समथिंग कॉल्ड मनी, है ना, बिकॉज
he is spending, he has to do work on this system, or he has to supply energy, then only this is possible. रेफ्रिजरेटर -26 पे ही रहता है, जब भी रेफ्रिजरेटर थोड़ा गर्म होता है, कंप्रेसर चालू हो गया. You cannot do something which is against the nature. पानी नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर रोज चला रहे हैं हम हमारे अपार्टमेंट में, मोटर चलता है, पंप चलता है, इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अगर ऊपर से नीचे पानी फेंकना है, कुछ नहीं चाहिए, इसके नीचे आप खड़ा होकर नहा भी सकते हैं, वाटरफॉल. और जब ऐसा चीज होता है ना, अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग देख लो, यही आप 11 में देखोगे, तो हम कहते हैं इसको ऐसे दो ड्राइंग से दिखाते हैं. वी से दिस इज आवर सोर्स. ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, फिर केमिस्ट्री में आऊंगा. इसको हम कहते हैं सिंक. सिंक मतलब जहां आप डंप करते हैं. सपोज योर सोर्स इज एट अ टेम्परेचर T1 and the sink is at a temperature T2 such that T1 is much greater than T2. Understood? In this case, heat will flow from here to here. Do you agree or not? Yes. Such a system will give you work in return. ये आपको वर्क देगा. ऊपर से पानी नीचे फेंकिए, वो व्हील को घुमा घुमा के आएगा. So you get energy out of this system. This is the concept of a heat engine. This is an engine. इंजन में हम गर्म से लेके ठंडे में छोड़ते हैं, तो आपको वर्क मिलेगा. और यही चीज जब आप उल्टा करने की कोशिश करते हो, like this, say suppose this is my source, okay, and this is my sink. Sink is at a temperature T2, source is at a temperature T1, same condition, but you want now heat to go this side. This will be possible only when you supply work. ये चीज कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में डाल के देखिए. अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं 11-12 में, कोई भी सिस्टम दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके मुताबिक चलेगा. If you want to go against the nature, try to spend for it. Understood? The same example is in water, the same example is in voltage, everything. You have to do work. Clear? तो वापस चलते हैं हमारे पुराने डिस्कशन पे. ठीक है? So what is our old discussion? We have understood the process of exothermic. हमने समझ लिया है. एक्सोथर्मिक में क्या होता है? सिस्टम रिलीजेस हीट टू सराउंडिंग. क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है. एज अ रिजल्ट सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर? ओके. नाउ एक्सो को कैसे याद रखने का? हीट एग्जिट्स. हीट एग्जिट्स द सिस्टम. ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट. अब आइए समझते हैं एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक के लिए भी डायग्राम बनाते हैं. ये है हमारा सराउंडिंग, और इस सराउंडिंग में ये है हमारा सिस्टम. एंडोथर्मिक का मतलब है ये सिस्टम है और ये है सराउंडिंग, है ना. एंडोथर्मिक मीन्स that this time what will happen, the heat will flow in from the surrounding to the system. ठीक है? ऐसे केस में क्या हो जाएगा? सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर घटेगा, कम होगा. तो इसको कैसे याद रखते हैं? एंडो से आता है वर्ड एंटर्स. तो इसमें क्या बोलते हैं? हीट एंटर्स द सिस्टम. हीट सिस्टम को एंटर करेगा. इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हमारा सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर घट जाएगा. इज एक्सो एंड एंडो फ्रॉम फिजिक्स पर्सपेक्टिव अंडरस्टूड बाय यू? इफ देयर इज अ प्रोसेस, फिजिक्स में क्या बोलेंगे हम? रिएक्शन नहीं बोलेंगे. फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे? इफ देयर इज अ प्रोसेस in which system releases heat to the surrounding, such a process is called an exothermic process. And if there is a process where system gets heat from the surrounding or system takes heat from the surrounding, this is called endothermic. The aid to memory is heat enters and heat exits. यही कॉन्सेप्ट अब आते हैं केमिस्ट्री में. थोड़ा सा पहले आपको इरिटेशन होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे. केमिस्ट्री में आपको जो चीज समझना है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं. व्हाट इज द सिस्टम and what is the surrounding. एक बार इसमें क्लैरिटी आ गया तो आपके लिए सब क्लैरिटी आ गई. And we're going to talk in terms of lab. तो लैब में आप क्या करते हैं? लैब में you will have a test tube, right? You will have some reactant mixture. So this is
रिएक्शन, द रिएक्शन मिक्सचर हम इसे बोलते हैं, वट एवर रिएक्शन इज गोइंग ऑन, दिस इज वॉट द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली खुला है तो एयर है, एंड दीज आर द प्लेसेस, ये जो जगह है, ये सब जगह, दीज आर द सराउंडिंग्स अराउंड टेस्ट ट्यूब। देखिए तो ये डायग्राम आपको समझ में आया? डोंट ट्राई टू कंक्लूड एनीथिंग। व्हेन यू विल बी इन अ लैब एंड यू विल सीइंग इट फ्रॉम अ केमिस्ट्रीज पर्सपेक्टिव, केमिस्ट्री में हम ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रहेगा, उसमें एक और केमिकल डालेंगे, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर बोलते हैं उसको हम। तो एक रिएक्शन मिक्सचर है, अंडरस्टूड, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर है, और एक सराउंडिंग जोन है, टेस्ट ट्यूब का एक सराउंडिंग जोन है। केमिस्ट्री में ये पूरा चीज जो है ना, ये सराउंडिंग है, यही बच्चा गड़बड़ कर देता है, ये सराउंडिंग है। तो बात आता है सर सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं। फिजिक्स में आप सिस्टम को देख पाते हैं, रेफ्रिजरेटर आपने देख लिया, एयर कंडीशन रूम आपने देख लिया, बॉयलर आपने देख लिया, लेकिन केमिस्ट्री में आप सिस्टम को देख नहीं पाते हैं। नाउ लेट अस सी, अगर नाउ आवर क्वेश्चन कम्स, ये बेटा इतना समझ में आया? In chemistry, always remember, this is very nicely dealt in Cambridge. The test tube, the reaction mixture, the air inside the test tube, and the zone surrounding the test tube. Everything constitutes the surrounding. बस अब हमें करना क्या है? अब हमें हमारा फंडा लगाना है। अगर सराउंडिंग ठंडा हुआ, खुद बोलो, सराउंडिंग ठंडा हुआ तो सराउंडिंग has given away heat. To whom? To system. That means heat has entered the system. Such a reaction will be known as endothermic. और अगर हमारा सराउंडिंग गर्म हुआ, व्हाट इज सराउंडिंग? अंदर वाला गर्म, या फिर टेस्ट ट्यूब गर्म, या फिर गर्म हवा निकल रहा है, या इर्द गिर्द गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है, तो फिर हमारा सिस्टम क्या? सिस्टम ने हीट छोड़ा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो आइए अब हम लिखते हैं, अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, suppose you have a chemical reaction, और इस chemical reaction में concept will again remain the same. The concept is heat exits. Heat exits का मतलब क्या हो जाएगा आपका? surrounding का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। और सराउंडिंग की डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, टेस्ट ट्यूब, एयर, रिएक्शन मिक्सचर एंड सराउंडिंग। यानी कि इन जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, आप ये अपने आप को सवाल पूछो, क्या टेस्ट ट्यूब गर्म हुआ, क्या सराउंडिंग गर्म हुआ? अब देखना सारे एग्जांपल्स हम इसी में डालेंगे, यही लक्ष्मी सिंह के सब आंसर कड़क 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 गिरता रहेगा हमारा। समझ में आया? और अगर हीट एंटर करेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज माय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट एंटर करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। सराउंडिंग का डेफिनेशन आप जानते ही हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। अच्छा, थोड़ा और अगर आप डीप जाना चाहेंगे, when we write it in chemical reactions, exothermic में जो heat है ना, heat is actually shown on the product side. जाहिर सा बात है ना, heat is getting out, so we show it on the product side. बाहर निकल रहा है, रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करता है ना, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, रिएक्शन, प्रोडक्ट्स। हीट को हम किस साइड दिखाते हैं? प्रोडक्ट्स के साइड में। अब क्लियर बैठ रहा है कॉन्सेप्ट? और एंडोथर्मिक में हीट जो है ना, हीट रिएक्टेंस के साइड देता है, रिएक्टेंस के साइड में है। हीट चाहिए तभी होएगा। ये प्रोसेस समझ में आया? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वन ऑफ अ वेरी कॉमन एग्जांपल दैट आई विल गिव यू, व्हिच आई टेल एवरीवन, इज दैट जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल्स वगैरह में रहते थे, तो हम लोग थे गरीब्स। गरीब्स मीन्स वी डोंट हैव अ रेफ्रिजरेटर इन हॉस्टल, but everyone wants to have chill beverages and everything. So how do we used to have?
So whenever there is expired ammonium chloride available in chemistry lab, ammonium chloride बाल्टी में डाल दो. जैसे आप बाल्टी में अमोनियम क्लोराइड डालते हैं ना, बाल्टी फ्रीजिंग कोल्ड हो जाना शुरू कर देता है. अब कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कीजिए. बाल्टी हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है एक तरह का. उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड डाला, अंदर पानी है, रिएक्शन मिक्सचर है. बाल्टी पूरा ठंडा हो गया, पानी भी पूरा ठंडा हो गया. यानी कि क्या चीज ठंडा हुआ? सराउंडिंग ठंडा हुआ. ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? एंडो. एक्सो हो ही नहीं सकता. एक्सो में सराउंडिंग गर्म होगा हमेशा. फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, एक्सो एंडो का डेफिनेशन तो चेंज है. कंफ्यूज मत होइए. एक्सोथर्मिक मतलब सराउंडिंग गर्म होना. मैं आपको फिर बता रहा हूं. इफ यू कैन आंसर माय क्वेश्चंस, आई विल अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टूड. So when we had to cool down all these Mirinda, Pepsi and everything, we never had refrigerators. We used to take a bucket of water and we used to pour ammonium chloride in it. The moment you pour ammonium chloride in bucket, the bucket water becomes freezingly cold. ठंडा हो जाएगा पूरा. Bucket is analogous to test tube. Ammonium chloride and water is the reaction mixture. Bucket itself is the test tube body. इर्द गिर्द आप छुओगे तो आपको भी ठंडा लगना शुरू हो जाता है उसके पास. यानी पूरा सराउंडिंग ठंडा हो गया है. सराउंडिंग्स टेम्परेचर हैज कम डाउन. वेयर डिड द हीट गो? इट वेंट टू द सिस्टम. वो इस सिस्टम को आप नहीं देख पाते हैं. दैट इज द रिएक्शन. हैव यू अंडरस्टूड? सो अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर. अगर आपको कोई पूछे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन और आपको सीधा बोल दे दैट द बकेट फ्रीजेस, स्टार्ट्स टू गेट कोल्ड, यू विल से इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. बिकॉज़ ऑलवेज रिमेंबर, the test tube, the reaction mixture, the air inside the test tube and the surroundings are all the part of surroundings. Physics में ये बहुत आसान है. Physics में is that refrigerator or that AC room. Chemistry में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना. एक और एग्जांपल देते हैं आपको. यही बाल्टी वाला. तो हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है राम सरन भैया. आप क्या करते हो जी? हम पेंटिंग का काम करते हैं. व्हाइट वॉश कर देंगे? हाँ कर देंगे. चूना लाइए. जैसे ही चूना घोलना शुरू कर देता है ना, बकेट का पानी बक 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 गर्म हो जाता है. लाइम व्हेन इट इज मिक्स्ड, क्विक लाइम व्हेन यू आर एक्चुअली पुटिंग इन वाटर, पानी में चूना घोलते ही पानी गर्म हो जाता है. इनफैक्ट इफ यू टेक चूना, हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा ना, आप ऐसे ऐसे घिसेंगे तो हाथ में ही गर्मी आना शुरू हो जाता है. इट्स क्वाइट हॉट. सो व्हाट हीटेड? द चूना पानी हीटेड, रिएक्शन मिक्सचर. द बकेट गॉट हॉट, द एयर अराउंड द बकेट गॉट हॉट, द सराउंडिंग हीटेड. What type of reaction was that? Exothermic reaction. Now some easy examples. We go to a glacier and we find that on a sunny day the glacier is slowly melting. Exothermic or endothermic? Endothermic. Glacier ने heat को लिया and then it starts melting. Understood? That's why earthen pot वाला concept जो होता है, all these earthen pot, what happens to the evaporation? इवेपोरेशन एज अ प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? यू टेल मी. इवेपोरेशन होने के लिए किसी को तो अपना स्टेट चेंज करना होगा, तो उसे हीट चाहिए. तो वो हम लोग करते क्या है? वी टेक, व्हाट डू वी टेक? वी टेक अ पोरस अर्दन पॉट, जिसमें से उसको पानी से भर लेते हैं और उसके चारों ओर क्या करते हैं? एक गीला गनी बैग जैसा लपेट देते हैं. अब गनी बैग क्या करना चाहता है? गर्मी में सूखना शुरू हो जाता है. सूखने के लिए वो हीट कहां से लेगा? फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड दैट पोरस वाटर. जैसे ही गनी बैग सूखता है, अंदर का पानी अपना हीट गनी बैग को दे रहा है, तो पानी अपना ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है. सो व्हेनेवर देयर विल बी, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. बर्निंग ऑफ कोल. हमने कोल को जलाया. कोल बर्न्स एंड गिव्स यू लॉट ऑफ हीट. Obviously it's an exothermic reaction. Remember, all combustion reactions are exothermic reaction. Respiration is also slow combustion. So respiration is what? Exothermic. Photosynthesis is reverse. अरे photosynthesis में सूर्य चमकेगा नहीं तो बनेगा ही नहीं. सूरज ही तो एनर्जी दे रहा है. एनर्जी लेता है रिएक्शन एंडो. इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस होता है, कौन से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? ग्रीन प्लांट्स. So when photosynthesis is happening and if you sleep in the what do you call forest, don't you feel very cold? Surrounding ठंडा होता है ना, क्योंकि हीट वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है. Are you understand? But don't get confused on two more things. Nitrogen reacts with oxygen to form nitrogen monoxide.
ये बहुत लोग पूछ देता है. People think, oh sir ने बोला था ना all combustion reactions are combustion, not half combustion. Nitrogen reacts with oxygen to form nitrogen monoxide. ये reaction याद रखिए दो ही सिनारियों में होते हैं. One, when lightning happens, we have lot of nitrogen in the atmosphere and lot of oxygen. So huge amount of energy is required for that reaction. Then only you will form nitrogen monoxide. Formation of nitrogen monoxide is not exothermic, it's a endothermic. और ये रिएक्शन कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल इंजन चैम्बर में. वहां भी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स टुगेदर to form nitrogen monoxide, which is a hazardous exhaust that comes out. And inside the automobile gas heat, what you call engine chamber, the temperature is very high. Unless you give that high temperature, that reaction will not happen. So have you now understood the difference between endothermic and exothermic? अब आप कोई भी रिएक्शन को ना फटाक से आप ये अप्लाई करो. रिएक्शन हो रहा है, आपने बर्न किया है, कोल को बर्न किया है. किसमें बर्न किया है? बारबेक्यू चैम्बर में. वही हमारा टेस्ट ट्यूब. रिएक्शन मिक्सचर हाथ से कोयला उठा पाओगे? गरम हो गया है. इर्द गिर्द आप भी ऐसा पसीना हो गए हैं, गरम हो गया है. हाथ अंदर डाल के देखो, वो भी गरम हो गया है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिस्टम को हम देख नहीं पाते हैं. बताओ, endo and exo, have you understood now? So what is an exothermic reaction? A chemical reaction in which heat exits the system, right? And when you go to higher in grade 11, you will find that for certain reactions to take place, you have to supply heat also. जैसे if you want to burn coal ऐसा तो नहीं कि coal रख देने से C plus O2 CO2. You have to first give heat. So you spend 4 rupees and you will be getting 40,000 rupees. Business में पैसा लगाओगे तब ना business पैसा देगा. अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 39,996. वो हीट एग्जिट कर रहा है आपका. नेट ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन. इफ दैट नेट इज लीविंग, एक्सोथर्मिक. इफ द नेट इज entering, endothermic. Clear? So we'll see some examples from book whether we have understood or not. Change in temperature. So बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने देख लिया है. So some of the examples are what? Potassium quicklime mixed with water and any metal and acid. Any metal and acid. Suppose if you take sulfuric acid or dilute acid and you start putting what? Say granules of zinc in it. So what will form? Zinc sulfate, zinc chloride, and another thing will come out. चलो बोलो. Hydrogen. Metal reacts with acid. मैं आपको, आप सिर्फ एक्सोथर्मिक में खोके मत रहिए. आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला एसिड में मेटल छोड़ रहा हूं. Metal reacts with acid to form metal salt and releases hydrogen gas. यानी कि वो जो रिएक्शन हमने उस दिन देखा था, it qualifies in evolution of gas also as well as in change of temperature also. And what sort of change of temperature? It will be exothermic. ये exothermic reaction है. Clear? अच्छा बोलो, कुकिंग क्या प्रोसेस है? समझाना पड़ेगा मुझे. हाँ, यथार्थ कह रहा है एक्सो है. ये मत सोचो कि रॉन्ग है. कुकिंग एंडो है कि एक्सो है, वो सोचिए. Cooking is an endothermic process. Cooking के लिए, cooking is not measured by you sweating. Cooking is measured by the ingredients getting cooked. क्या पनीर सॉफ्ट हुए? क्या आलू उबले? आलू के उबलने के लिए हीट चाहिए. सर मैं भी तो पसीना हो गया, पानी हो गई मैं. वो रील मत गा देना. वो तो रेडिएशन हो रहा है फ्लेम से आपको. वो रेडिएशन के लिए आपको गर्मी आ रही है. दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. खाना जब हम बनाते हैं, तीनों चीज होता है. कंडक्शन, पतीला का गर्म होना, पतीले के पानी का गर्म होना कन्वेक्शन, और पास में आप पसीना हो जाना रेडिएशन. दैट इज सो कुकिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. सब्सटेंसेस गेट कुक्ड ओनली व्हेन दे एब्सॉर्ब एनर्जी. चलो इतना क्लियर हुआ. सो almost all, and NCERT does not tell you about one characteristic इसमें है, which is known as change of state. Okay, change of state. So let's discuss a little bit about the fifth one also. यहाँ लेकिन important मैं आपको बता दिया, evolution of gas को importance दीजिएगा and temperature को importance दीजिएगा, क्योंकि इस questions इसी दो से ज्यादातर आते हैं. So number 5 is change of state. Change of state जो है ना, it is not 100% criteria that reaction has taken place. जैसे melting,
मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज, वहां भी स्टेट चेंज होता है। लेकिन इसको कहाँ पकड़ते हैं, जैसे पैराफिन हो गया, कैंडल, कैंडल को हमने बर्न किया, सो इट्स अ हाइड्रोकार्बन बर्निंग इन ऑक्सीजन, एनी हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, ये भी लिख के रख लीजिए, आगे यूज होगा आपको। एनी हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन बड़ा सिंपल है, विल ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये लेकिन वाटर वेपर है। जब खाना बनाते बनाते आपका बर्तन काला वाला हो जाता है ना, दैट इज ड्यू टू दिस ओनली, वाटर वेपर, मॉइस्चर। सो इफ यू आर बर्निंग कैंडल, कैंडल भी हाइड्रोकार्बन है, you are burning it in oxygen, so you are getting carbon dioxide, so reaction is taking place, but in that process you will also see paraffin changing its state. So that's why many books include this, many books don't include this. Change of state is not a 100% guarantor that reaction has taken place, but certain reactions involve the change of state. Combustion of paraffin wax. This brings us to the closure of Pratham Khand of this chapter, which is characteristics of a chemical reaction. Let's have a quick revision. What were the characteristics all about? Evolution of gas, and what are we supposed to break our heads on? Hydrogen, carbon dioxide, the reactions, their processes, how they are tested, testing mechanism. बच्चा इसको घोट के पी जाना, hydrogen and carbon dioxide. Then we saw formation of precipitate. In formation of precipitate, you can pick up one example. If somebody says pick one example, I'll always say pick the example of lead nitrate, because that one example will work in double displacement, will work in color, will work in precipitate, तीनों में काम करेगा आपके साथ। उसके बाद हमने क्या देखा? We saw change in color. Change in color में we saw potassium permanganate reacts with citric acid or any acid, it will lose its coloration. And potassium dichromate में sulfur dioxide गैस अगर हम छोड़ दें तो ये अपना कलर ऑरेंज से ग्रीन में बदल लेता है, ठीक है। यहां से भी इतना कोई नहीं पूछेगा। आफ्टर दैट कम्स आवर मेन पार्ट, व्हिच इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से आता है एंडो और एक्सो का कॉन्सेप्ट। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच हीट एंटर्स द सिस्टम, हीट इज अ पार्ट ऑफ द रिएक्टेंस। सिस्टम will temperature will go up, surroundings temperature will come down. Exothermic reactions are those reactions in which heat exits the system. Heat is a part of the product side. The temperature of the surrounding will go up and that of the system will come down. And in chemistry, always remember the system is something that you can't see. You will take your decision always based on the surrounding. The surrounding is the test tube, the content inside the test tube, the air inside the test tube, and the ird-gird of the test tube itself. That is known as the surrounding. क्या इतना तक आपका क्लियर हुआ भाई साहब? ठीक है। इसके बाद वाला सेक्शन आता है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। चलें थोड़ा सा कर लेते हैं, टाइम तो है ना। यो नाउ वी कम टू केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे आराम से, पहले समझते हैं केमिकल इक्वेशन है क्या। केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड, इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट a chemical reaction. एक तरह का मेथड है, जैसे आप स्कोरिंग रेट देखने के लिए ग्राफ यूज करते हैं। ग्राफ इज अ मेथड टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ अ साइड हु इज प्लेइंग क्रिकेट, टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट। Chemical reaction is also a method, but the khasiyat of this method is that here we will have certain rules which we follow universally. Like for example, इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ता है केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल? Symbol is a characteristic of an element, that is an atom. Formula is for a molecule. O is symbol, element is oxygen, O2 is still oxygen, molecule, but that is chemical formula. और केमिकल फॉर्मूला हमेशा याद रखिए ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होगा, ठीक है। हमें केमिकल फॉर्मूला चाहिए। फिर एक केमिकल इक्वेशन को दिखाने के लिए वी विल हैव सर्टेन अदर थिंग्स, लाइक हम स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स, स्टेट्स मतलब क्या क्या आ गया? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, एक्वस हो सकता है। एक्वस मतलब मिक्स्ड इन वाटर, अंडरस्टूड। स्टेट्स की बात करते हैं। देन वी विल आल्सो लाइक टू सी व्हाट इज द हीट फ्लो, मतलब हीट एंटर्स है, हीट एग्जिट्स है। हीट एंटर कर रहा है, एंडोथर्मिक है,
तो हीट को हम जनरली कैसे लिखते हैं, प्लस डेल्टा मतलब डेल्टा दिखाना ही हीट की, इट्स लाइक हीट सिस्टम इज टेकिंग हीट। अगर हीट एग्जिट कर रहा है और यू आर कूलिंग इट, माइनस डेल्टा भी दिखा सकते हैं, बट डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट। जनरली आपके लेवल में ये सब कोई यूज नहीं करता है। देन वी आर ऑल्सो सपोज टू शो समथिंग कॉल्ड द कैटलिस्ट। Catalyst is someone who speeds up the reaction. Then only your reaction becomes informative. Catalyst दिखाते हैं। इसके अलावा हमें physical conditions भी दिखाने पड़ते हैं। Physical conditions, इसमें हम ज्यादातर बात करते हैं कितना टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, कितना प्रेशर में रिएक्शन हो रहा है। So it's a shorthand representation of the entire chemical reaction, okay? And it will tell you who are basically chemical formulas। तो ये chemical formulas किस चीज के हम लिखेंगे, इस chemical formulas हम लिखेंगे reactants के, ये आपका माइंड मैप है, और प्रोडक्ट्स के लिखेंगे। मतलब किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सुनिए मेरी बात एक बार। Who participated, under what condition, in what form, whether taking heat or releasing heat, assisted by whom, to produce what। एंड क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हम एंटोनाइन लेवोइसर के क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको भी हमें रिस्पेक्ट करना होगा। इसमें हम क्या कहते हैं, दैट द मास mr should always be equal to mass of the product, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए ही हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। देखो तो एक माइंड मैप से सब क्लियर हो गया आपका। Why do you balance the reaction? We balance the reaction in order to satisfy the condition of law of conservation of mass. During any chemical reaction, mass is always conserved. Mass can transform from reactant to product. पूरे अर्जेंटम टावर को अगर तोड़ के बुलडोजर से पाउडर कर देंगे और फिर वजन करेंगे तो उतना ही पाउडर आना चाहिए जितना अर्जेंटम टावर का वजन है, कंसिडरिंग नथिंग हैज बीन लॉस्ट। ठीक है ना। और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या रहता है, so now we go to our book definition. So what does it say? A method of representing a chemical reaction with the help of symbols, formulae, substances involved. अभी आप English, it's all about your अंग्रेजी power. So a chemical reaction tells us about, if somebody says, see, always when you write an answer, mention the keyword. What is the information revealed by a chemical equation? A chemical equation tells me about the reactants, about the products, what you call the physical conditions in which the reaction is taking place, the overall heat of the reaction, so that the reaction is either endothermic or exothermic, and it also tells me the catalyst that is involved, the state of the reactants. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी हम दिखाते हैं, precipitate है तो precipitate भी बताते हैं हम, है ना, precipitate भी बताते हैं, the heat exchange, and we also balance it to show the net mass involved in this reaction, the reaction to take place. जैसे C plus O2 CO2 है, वो balanced reaction है। We all know ammonia form होने के लिए क्या होता है, hydrogen reacts with nitrogen, दोनों gas, hydrogen and nitrogen both are gases, and this happens something around at 200 atmosphere pressure and 400 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, वेरी बॉम्ब जैसा कंडीशन है, और ये बनता है अमोनिया NH3। तो इसको हम बैलेंस जब करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, 2 डाल देंगे तो N2 हो गया, और यहाँ पे 3 डालेंगे, अब ये बैलेंस्ड हो गया। अमोनिया किसने बनाया था आपको पता है? अमोनिया वाज फ्रिट्ज हर्बर, एंड फ्रिट्ज हर्बर ने जो भी चीज बनाया, साइंस हैज ऑलवेज यूज्ड दिस फॉर डिस्ट्रक्शन। फर्टिलाइजर बनाया, अमोनिया बनाया, इसको गैस चैम्बर में यूज किया। हिज वाइफ आल्सो डिवोर्स्ड हिम once upon a time later because none of his inventions and discoveries were used for good of mankind। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल। सो बैलेंसिंग पार्ट, या बिट्टू बोलो बोलो बोलो, आई विल टेक अ ब्रेक। हाउ स्ट्रॉन्ग इज अमोनिया? अमोनिया का एक चीज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे एक मिलता है आपको, इसमें लैब में मिलता है। अगर आप पेंटेड स्नेक को भी सुहा देंगे ना तो भी वो जाग उठेगा। सो समटाइम्स इफ यू मेनी पीपल व्हाट दे डू, किसी को अगर, नाउ दिस इज अ सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी, सपोज समबडी हैज अंडरगॉन अ कार्डियक डिसऑर्डर, कार्डियक फेलियर, और मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो गया है, एंड ही हैज, आप CPR UPR सब दे रहे हैं, और किसी भी तरह से
अगर आप थोड़ा सा हैंकरचीफ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी उसके आसपास, इट इज वेरी स्ट्रांग, अगर उसमें भी रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, एंड पीपल आर डायलेटेड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं, इतना स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग। Sir, is it the strongest? It is not strongest. The strongest is sodium hydroxide. That is called the king of base. All hydroxides are known as bases. The king of base is sodium hydroxide, NaOH. Ammonium hydroxide is also very strong. Again, a very bad example. If you have shabbily maintained washrooms and urinals, उसके आसपास गुजरने से पब्लिक बस स्टैंड में जो आपको एक स्मेल आता है ना, that is ammonium hydroxide because urine contains ammonia. बट आयरनी इज दैट उसी के पास वाला जो थोड़ी दूर में गोलगप्पे का दुकान होगा ना, उसका गोलगप्पा सबसे टेस्टी होता है। जितना साफ एरिया में आप गोलगप्पे खाएंगे आपको कभी टेस्ट नहीं। तो ऐसे करके क्यों देख रहे हो मुझे? मैं कोई गोलगप्पा तुम कभी भी एप्रन उपरन पहन के और स्पून से लेके खाओगे तो कभी टेस्ट आएगा? गोलगप्पा मतलब यहाँ पास में गंद वंद रहेगा, टेस्ट। और वो ऐसे बोले हाँ बोलिए आपका कितना, आपका मिर्ची ज्यादा करके दें क्या? तो देखना टेस्ट होगा, भैया उसमें मिर्ची कम दे, हाँ मैडम जी मिर्ची कम ही दे रहे हैं। और फिर गोलगप्पा खाने के बाद बिस्लरी का पानी पियोगे। गोलगप्पा 5 स्टार होटल में थोड़ी टेस्टी होता है। ऐसा जब तक ऐसा नहीं करेगा तो मजा ही नहीं आएगा, है ना? अभी तुम लोगों में इम्यूनिटी नहीं है। हमारे टाइम पे लाइक इन माय डेज आई हैव नेवर सीन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ऑयल। नाउ आई विल नेवर ईट समोसा। अगर कहीं भी तल रहा है, माय कार हैज टू अंडरगो अ ब्रेक, 2 पैकिंग लेना ही है। कोई मुझे कहता था डू यू ट्रस्ट दैट ऑयल? मैंने कहा इतना कभी सोचा ही नहीं। समोसे के लिए मैं किसी भी प्लेनेट तक जाने के लिए राजी हूँ। अब नहीं खा पाता हूँ, अब एसिडिटी हो जाता है। लेकिन इन योर एज 10-11 समोसास यूज्ड टू बी नथिंग। तुम लोग खाते ही नहीं हो, ठीक है? तो बैलेंसिंग पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन, सो दैट पार्ट वी विल नॉट टच। सो व्हाट आई विल से नाउ इज दैट okay, rusting is exothermic or endothermic? Rusting is slow combustion. Exo combustion मतलब exo, digestion is endo और exo। खाना खाने के बाद कितनी गर्मी आती है लोगों को, है ना? रेस्पिरेशन क्या है? एक्सो, फोटोसिंथेसिस एंडो, ठीक है? तो ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट होके आया है। सो आई विल सर्कुलेट सम नोट्स आल्सो टू यू ऑल चिल्ड्रन, एंड देन इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, स्टिल आई एम नॉट राइटिंग अ प्लेथोरा ऑफ व्हाट यू कॉल रिएक्शंस। This brings us to the first part of Lakshmi Singh's see in grade 10 it's like grade 9, the first part of the book comes to an end of this chapter. First part means after a certain part there will be some exercises. First what you should do, अभी आप पढ़ के उसका MCQs attempt कीजिए। क्या आपसे MCQs बन रहे हैं कि नहीं? अगर 90-95% MCQs बनते हैं that means you have understood। फिर इस पार्ट के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखिए, हाँ, और इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे अगर आपको लगता है आई हैव नॉट कवर्ड समथिंग, इफ यू से सर देयर वर सम रिएक्शंस यू डिडंट कवर, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपको इतना रिएक्शंस दिखाऊंगा कि आपके हाथ दर्द हो जाएंगे। तो आप रिएक्शन की चिंता मत कीजिए, रिएक्शंस हम लिखना शुरू करेंगे जब हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं, मींस व्हेन वी स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, addition reactions, displacement reactions, yeah. Study NCERT first, or can you directly start with Lakshmi Singh's? You can start right now. See, we are on stage 1, right? In stage 1, better you start read from Lakshmi Singh. If you study from Lakshmi NCERT अभी ना, your mindset will develop that मैं इससे ज्यादा क्यों पढ़ूं। अभी आप लक्ष्मी सिंह पढ़िए। When we go to stage 2 revision, stage 2 में आप क्या करो, जैसे आप NCERT को पहले उठाइए और उसमें मान लीजिए लिखा है only 4 criterias: evolution of gas, formation of precipitate, change in color and change in temperature। तो एक पेंसिल लीजिए और लक्ष्मी सिंह में ये 4 को टिक कीजिए, उन्हीं को पढ़िए। You are now preparing for an exam. Right now you are preparing to learn. आपका फर्स्ट स्टेज होना चाहिए लर्न। आप सीखिए, 1 नंबर 2 नंबर कम आ सकता है, लेकिन आप जानते हैं 11 में जाके एटलीस्ट बेवकूफ की तरफ मत बोलिए एक्सोथर्मिक मुझे नहीं पता, ये नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो भी मैं पढ़ाया वो अभी इस बुक में नहीं रहे, बुक में आपको सिर्फ रिएक्शन से बता देगा व्हाट इज एंडो एक्सो। डिटेल में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि नेक्स्ट राउंड में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। व्हेन वी डू नेक्स्ट राउंड एंड वन शॉट रिविजंस, वी विल बी स्टिकिंग टिपिकली टू एनसीईआरटी topics only. Right now you may see I may go beyond the topic. तो आप भी अभी पढ़िए। तो my suggestion would be to read from this. Now you may say sir यूनिट टेस्ट में आपकी बात पढ़ के गया लेकिन सब एनसीईआरटी से आया, वो सब मेरे पे रिस्क मत दीजिए। ज्ञान है, चारों ओर बह रहा है, जितना एब्जॉर्ब करना है कीजिए।
and in second you should go for NCERT. And when you're doing maths now, reverse should be your thing. You should do NCERT first. फटाक से NCERT खत्म कर लो, एक भी एग्जाम्पल मत छोड़ो, एक भी प्रॉब्लम मत छोड़ो, एंड देन डू द रेस्ट. और आपको कुछ कुछ चैप्टर्स के बाद मैं वर्कशीट भेजूंगा. इवन डूइंग दोस वर्कशीट्स इज मोर देन इनफ एट दिस स्टेज. इफ यू डू, देन यू विल से सर व्हाई डिड यू मेक अस परचेज RS अग्रवाल एंड ऑल. वहां भी करो, जितना करोगे उतना अच्छा है जहां से करोगे. But in some chapters, I will again caution you, do not go too deep. Rather that spend that time in social studies. ठीक है? So next class से हम reactions के ऊपर जाएंगे, where we will be studying all types of reactions. So take your time now. You have enough amount of time to read till the first part. First part means when you come to the first blue type section. वहां तक आप पढ़िए अच्छे से and